बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविय, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सजन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दै शाहो। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसाहो। श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग सूही महला तीजा। घर पहला अष्टपदिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नामै ही ते सब किश होवा, बिन सतगुर नाम ना जापै। गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध ना जापै। नामै ही ते सब किश होवा, बिन सतगुर नाम ना जापै। गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध ना जापै। कौडी बदलै जन्म गवाया, चीनस नाहि आपै। गुरमुख होवै तां एको जानै, हौमै दुख ना संतापै। बलिहारी गुर अपने विटों, जिन साचे स्यों लिव लाई। शब्द चीन आत्म परगासिया, सहजे रहया समाए। रहाओ गुरमुख गावै गुरमुख बूझै, गुरमुख शब्द विचारे। जियो पिंड सब गुर ते उपजै, गुरमुख कारज सवारे। मनमुख अंधा अंध कमावै, बिख खट्टे संसारे। माया मोहे सदा दुख पाए, बिन गुर अत प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे, चालै सतगुर पाए। साचा शब्द सिफत है साची,
ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਸੱਚੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਚਾ, ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਘਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੱਟੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਸਾਚੈ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਸਾਧੀ ਕੂੜੋ ਬੋਲੇ, ਬਿਖ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਜਮਕਾਲ ਬਾਧਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਦਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਵਣ ਛਡਾਏ। ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰ ਨਾਵਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਬੁਝਾਏ। 68 ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਏ, ਤਿਤ ਨਾਤੈ ਮਲ ਜਾਏ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ, ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ ਨਾ ਲਾਏ। ਸੱਚੇ ਸਿਫਤ ਸੱਚੇ ਸਾਲਾਹਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ। ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਕਿਛ ਹਰ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਦੁਰਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਕਮ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਸਹਜੇ ਚਾਖੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰਾਤਾ, ਸਹਜੇ ਮਾਤਾ, ਸਹਜੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਏ ਪਿਆਰੇ। ਸੱਚੇ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ, ਸੱਚੈ ਨਾਏ ਪਿਆਰੇ। ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ, ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਵਿਚਾਰੇ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਸਵਾਰੇ। ਸਭੋ ਸੱਚ 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 ਵਰਤੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਜਾਣੈ। ਜੰਮਨ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮੋ ਵਰਤੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਦਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਵੈ, ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਦਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਵੈ, ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਛੋਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ
ਰੱਬੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਸਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ, ਦੇਖ ਪ੍ਰਿਓ ਕਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੋ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੂੜੋ ਠਾਕੁਰ ਮਾਹਰੋ, ਰੂੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਪਾਈਐ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਕਾਦਰੇ ਹਰ ਕਾਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਆਲਮੇ ਰੋਸ਼ਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਾਨੋ ਦਿਲ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹੋ। बड़े प्रेम सहित श्री मुखवाक गुरु का पाक फरमान आप संगत ने सरवण कीता है। खालसा पंथ दे नितनेम दियां 5 पाक बाणियां जप जाप सवैये चौपी आनंद, जिन्हां दे विचों खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पवित्र बाणी तो है प्रसाद सोईए, जिस दी विचार इस पाक रूहे जमीन ते चल रही है। आओ उन्हां अगमी बोलां दे नाल जुड़ के समय नूं जीवन नूं सफला करन दा यतन करिए।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਨਰਾ ਧਪ, ਜੌਨ ਤਿਰਲੋਕ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਬਾਬਤ ਤੁਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਪੁੰਨ ਸੁਣ ਹਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਕੋਟ ਫਲਾ ਗੁਰ ਤੇ ਬਿਦ ਜਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਟ ਫਲਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਗਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜੋ ਮਿਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਰਹਿਬਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਨਰਾ ਤਪ। ਇੰਦਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਪੂਰਨ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਇੰਦਰੇ ਰੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਇੰਦਰੇ ਰੱਜ ਗਏ, ਉਹ ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਚੋਂ ਮਹਾਦੇਵ ਇੰਦਰ, ਦੂਸਰਾ ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ, ਮਾਨਵਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ, ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ, ਨੌਖ ਵਰਗੇ, ਬਲ ਰਾਜੇ ਵਰਗੇ। ਹੁਣ ਮਾਨਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮਨੂ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਮਨੁਸ਼, ਮਨੁੱਖ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਗਜਿੰਦਰ, ਗਜਿੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗਜਾਂ ਦਾ ਹਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ ਹਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਰਾਵਤ ਹਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸ਼ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬੁਲੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿਤੰਭ ਸਨ ਉਹ ਕਾਲ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਜਿੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੰਦਰ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣਾ ਸੂਤ ਧਾਰੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਸਭ ਰਾਜੇ ਸਭ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ
ਠਾਂਡੇ ਹੈ ਦੁਆਰ। ਕਰੋੜਾਂ ਇੰਦਰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਮਹਿ ਸਰ ਪਰ ਮਰਨਾ, ਇੰਦਰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੌਤ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵੇਗੀ, ਮੌਤ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਸਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਡੈਥ ਇਜ਼ श्योर एंड सर्टेन। ये नहीं भी इंद्र नूं मौत नहीं आउंदी, चाहे गजेंद्र है उसनूं भी मौत आवेगी। एक गजेंद्र उस हाथी लई भी आउंदा जिहदा बाणी च जिक्र है ना, कहंदे वो नदी दे कंढे जल छकण लगा तो तेंदुए ने मगरमच्छ ने उहदा पैर पकड़ लिया। हुण मगरमच्छ भी बली है, हाथी नूं अपने आप ते माण है भी जंगल विच मेरे वर्गी बुलंद काया किसे दी नहीं। जितना चिर ते उसने जोर लगाया अपनी काया दे अनुसार, अपनी हस्ती दे अनुसार, जोर ना चले, समझ लग गई भी ये मगरमच्छ धू के हुण लै जावेगा पानी विच, ते पानी विच बल मगरमच्छ दा ही ज़्यादा है, चलेगा। कहंदे अखीर उसनूं बनाउण वाले दी याद आई, अकाल पुरख दी। हिंद नूं रखण वाले तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, तेग बहादुर सी करिया करी ना किन्हू आन। गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे ने, जब ही सरन गही किरपा निध, गज ग्रह ते छूटा, महिमा नाम कहाँ लो बरनो, राम कहत बंधन ते टूटा। रब चेते आ गया, वो ऐसी किरपा हुई, मगरमच्छ ने जबाड़ा खोल दिता ते वो हाथी दी रखिया हो गई। उहदे बाबत भी गजेंद्र लफ्ज़ आया है। ते नाल सानू ये समझाया गुरु तेग बहादुर साहब ने, मन रे प्रभ की सरन विचारो, जेहे सिमरत गनकासी उदरी, ताको जस उर धारो। पापियां नू पवित्र करन वाला आयो। गनका लफ्ज़ वेसवा लई आउंदा है। वेसवा भी उहदा नाम जप लवे ते निजात हासिल कर सकती है। कोई विकारी बंदा, कोई विकारी औरत भी रब दे गीत गा लवे ते जीवन सफला हो सकता है। सो महाराज इत्थे समझाउंदे ने, अकाल पुरख दी शरण ही बचिया जा सकता है। खैर गजेंद्र उस हाथी बाबत भी है जिसकी रखिया हुई सी। अगे है नराधिप, नरां दा जिहड़ा भूप है, राजा है, पुरुषां दा स्वामी है, जिहड़ा रावण वर्गे बलशाई देवते, जां कुबेर नूं भी नराधिप कहा है। कुबेर ना रावण दा ही भरा सी, इक्के परिवार दे सन, शरीके बाजी चों ही ये परिवार सी। विशरवा दा पुत्र सी ये। इनू रावण ने कढ़ता सी लंका चो ते आप राज कमाया सी। यक्ष ते किन्नरां दा राजा मन्निया गया है कुबेर नू। कहंदे देवतियां दा ये खजानची है। कहंदे चाहे कुबेर है, कोई भी है, यौन त्रिलोक को राज करेंगे। तिन्ना लोकां ते जिन्ना जिन्ना राज कीता है, चाहे मातलोक ते रावण वर्गे ने, देवलोक ते इंद्र वर्गे ने, ते चाहे पाताल लोक दे राजे बल वर्गे ने। इस गल दा ख्याल रखियो, रियासतां मानण वाले एडे एडे राजे भी नहीं रहे। बल राजे बाबत गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आउंदा है, बल राजा माया अहंकारी, जगन करे बहु भार अफारी। कहंदे दुनिया जित लई। इंद्र ने तरला लिया विष्णु दा भी ये ते मैनू भी जित लवेगा, किसे तरह इनू रस्ते चो हटाओ। इंद्र ने ब्राह्मण दा रूप धारन लई विष्णु जी नू भी बेनती की। विष्णु जी ने यही विਉਂਤ फिर घड़ी वो ब्राह्मण दा रूप धार के राजे को गए ते राजे पास जाके, क्योंकि बड़ा दानवीर सी वो राजा,
ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਝੋਲੀ ਪਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਬਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਛਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਣ ਹੀ ਇਤਨਾ ਸੀ ਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਦਾਤਾਰ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਤਾ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਰਾਜਾ ਬਲ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਮੰਗ ਲਈ। ਰਾਜਾ ਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਛੈ ਜਾਏ ਪਿਆਰੀ, ਪਿਆਲ ਚ ਪਤਾਲ ਚ ਤਸ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਤਾਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੂਲੋ ਰਾਵਣ ਮੁਗਧ ਅਚੇਤ, ਲੂਟੀ ਲੰਕਾ ਸੀਸ ਸਮੇਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਮੁਕ ਹੋਇਆ ਸੀਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਭਟਕ ਗਿਆ, ਲੰਕਾ ਵੀ ਗਵਾਈ ਤੇ ਸਿਰ ਵੀ ਲਵਾ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਕਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਲਵਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ, ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰਾਵਣ ਭਗਤ ਸੀ ਤੇ ਰਾਮ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਕਦੇ ਰਾਵਣ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕਾਕਾ ਸੀ ਰਾਵਣ, ਚੌਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਾਉਣੇ। ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼ ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੜਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਚਤੁਰਭਗਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਲੇ ਸਨ ਤੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਇਹ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਛਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਰਾਵਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਰਾਵਣ ਪਿਆ। ਬੜਾ ਉਹ ਸੂਰਵੀਰ ਸੀ। ਨਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਉਧਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਕਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ਼ਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਵਿਸ਼ਰਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੁਬੇਰ ਦਾ ਹੀ ਭਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਵੀ ਸੀ, ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਵੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਗੈਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਰਾਮ ਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਅਹ ਰਾਵਣ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਥੂਲ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਲੰਕਾ ਲੂਟੀ ਦੈਂਤ ਸੰਤਾਪੇ, ਲੰਕਾ ਲੁੱਟ ਲਈ ਤੇ ਰਾਵਣ ਜੋ ਦੈਂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਿਆ, ਦੁੱਖ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਦਾਂ ਵੈਸੇ ਲੈ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਾਮ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਨੇ,
विषय विकार ने, काम क्रोध लोभ मोह हंकार ने, उन्होंने भी मार दिता। सो महाराज पातशाह इत्थे ये गल समझाते ने सिखा, चाहे धरती दे राजे ने रावण वर्गे काल ने नहीं छड्डे, चाहे वो महापुरुष ने रामचंद्र जी वर्गे उन्होंने भी जाना पिया, ते चाहे महाराज कहंदे ने पाताल दे राजे ने बल वर्गे वो भी काल ने नहीं छड्डे, गजेंद्र वर्गे हाथी काल ने नहीं छड्डे, तिन्ना लोकां ते राज करन वालियां दा काल ने खुरा खोज मिटा दिता। अगे बड़े बड़े सूरबीर स्वंबर जितन वाले तीर्थां ते जाण वाले सतपुरुष दोवां दा जिक्र करदे ने। कोट इस्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे। कोट दा मतलब किला भी है, कोट दा मतलब इत्थे करोड़ा है। इस्नान तो भाव करोड़ा तीर्थां ते जाके जिन्ना इस्नान कीता। देखो एक गल तां है, शरीर दी शुद्धि दे नाल बंदे नूं टिका रहिंदा है। जे शरीर मैला होवे ना, नहाता धोता ही ना होवे, अपने आप तो ही बदबू आई जाती है, ते चौंकड़ा की लाउणा ते भगती की होनी है। सो पहला शरीर नूं स्वच्छ करदे ने, तां ही जितने तीर्थ वेखोगे ना वो ज़्यादातर सरोवर नदियां दे सहित होणगे। कोई साधु सतपुरुष नदी के कंढे इशनान करके बह जाता सी, जिन्हें नहाउणा ही नहीं उन्हें मन नूं कित्थों शुद्ध कर लेना है। पर कईयां ने शुद्धि केवल तन ते ही रख लई, भी तन शुद्ध है, बस नहा लिया इशनान कर लिया तीर्थ कर ले ते इन्हें नाल खेड़ निबड़ गई। मन की शुद्धि वल ध्यान नहीं दिता, गुरबाणी इस गल नूं नहीं मानदी। तन की शुद्धि भी जरूरी है ते अंतशकरण की शुद्धि भी जरूरी है। कहंदे कहाँ भयो तीर्थ व्रत किए राम सरन नहीं आवे। की होया? कहंदे तीर्थां ते चलिया गया, वर्त रख लए, परमात्मा की शरण ते ग्रहण कीती नहीं, नाम जपिया ही ना। कहंदे जोग जग निह फल तेह मानो, जो प्रभ जस बिसरावै। जितने मर्जी जोग साधना कर, तीर्थां ते नहा, परमात्मा चेते नहीं, ने फल है सब कुछ, कोई फल नहीं मिलेगा। गुरु साहब कहंदे ने मन दी निर्मलता परमात्मा दे नाम नाल है, ते तन दी निर्मलता इशनान करके है, दोवें जरूरी है। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भये रोगा, कोट बिघन लाथे प्रभ सरना, प्रगटे भले संजोगा। कहंदे तन स्वच्छ रख, कर इशनान, फिर की करना है? सिमर प्रभ अपना, फिर चौंकड़ा ला। हुण इहदे नाल की होवेगा? मन तन भये रोगा। इशनान कीतियां साफ सफाई नाल तन स्वच्छ रवेगा, अरोग रवेगा, ते नाम जपिया मन अरोग हो जावेगा। काम क्रोध लोभ मोह हंकार रूपी रोग नहीं लगणगे। जाता है तो ब्राह्मण कहता भी हुण मैं दरगाह तक तेरी गारंटी भर दी है भी तैनू 7 जन्म यही बीबी मिलेगी। ये बाणी चाहुंदा है फरमान, अरपै नार सिगार समेत, शिंगार करके नार अरप देनी। आकाशी वाल चले जाओ तो हजे भी इहो जिहा कई कुछ चलता है। हुण ये तो पता नहीं भी उन्होंने 7 जन्म लई बीबी प्राप्त होवे, वो ऐस च भी गवा बैठे ने कई बार। सो इदां दा दान करना। बाणी कहंदी अस दान, घोड़ियां नूं कहंदे ने अस दान, गज दान, सेहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित है कीजै। रोज कर ला हो जे दान तू। आत्म जो निर्मायल कीजै, आप बराबर कंचन दीजै, राम नाम सर तऊ ना पूजै।
अपना आप भी दान कर दे, जितने मर्जी दान पुण्य कर, राम दे नाम बराबर कोई दान नहीं है, पुण्य नहीं है। नाम जपना ते जपाउना, ताई तो क्या है, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवराह नाम जपावै। सब तो वड्डा पुण्य नाम जपना ते जपाउना। अगे कहंदे ने स्वंबर अनेक स्वंबर साज भरेंगे, एडे बली स्वंबर विच भाग लैंदे सन। पुराने समय की हुंदा सी, राजे स्वंबर रचदे सन भी उन्हां दी लड़की लई, राजकुमारी लई वर चाहीदा है, ते जेड़ा स्वंबर विच लईआं गईआं प्रीख्यावां विचों विजेता साबित हुंदा सी, ओहदे गल हार पा दिंदी सी राजकुमारी। सीता जी दा भी स्वंबर होया सी, वड्डे राजे स्वंबर रचदे सन। राम जी ने स्वंबर ही जित्तिया सी, सीता वरी। कहंदे बड़े बड़े महाबली होए ने जिन्हां स्वंबर जित लए, पर काल नूं नहीं जित सके, मौत नूं नहीं जित सके। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पत, अंत फसे जम फास परेंगे। कहंदे चलो वड्डियां दी गल करिए, ब्रह्मा जी ने, जिन्हों तुसीं चतुरानन कहंदे हो, चौहां मुखां वाला, पितामा कहंदे हो, सनातन मत वाले कहंदे है ये दुनिया रचदा है। एक है ब्रह्मा, एक है महेश्वर, महान स्वामी जिसनों शिवजी कह दिता जाता है। विष्णु जो दुनिया की पालना करता है। ज़्यादातर सनातन मत विच इसदे ही अवतार गिने गए ने। रामचंद्र जी कृष्ण जी इसदे ही अवतार ने। शिव जी लहता करता है, ये सनातन मत वाले कहंदे ने। सच्ची पत, पत कहंदे ने पति नूं, सच्ची दा स्वामी, सच्ची इस्त्री दा नाम है, ते उहदा पति कौन है? इंद्र। देवतियां चों महान देवते जिहड़े इंद्र वर्गे ने। महाराज कहंदे अंत फसे जम फास परेंगे, ये भी काल दी फाही तो बच नहीं सकते। जेड़ा भी शरीर धार के आया है वह दुनिया ते रहा नहीं है। बड़े बड़े धरती ते राजे होए ने, अवतार होए ने। त्रै काल विच उन्हां राज कमाया है। त्रिलोकी विच, मातलोक, पाताल लोक, देवलोक विच उन्हां राज कमाया है। स्वंबर जित लए, बड़े बड़े जंग उन्होंने जिते। मन भाउंदियां इस्त्रियां उन्होंने वर लईयां, विआह करवा लए। इत्थों तक दुनिया की रचना करन दा दावा कीता जी ब्रह्मा जी करते ने, लहता शिव जी करते ने, पालना विष्णु करते ने। 33 करोड़ देवतियां चों महान देव इंद्र वर्गे। पर जदों मौत आई, समा आया, ये फुल भी फिके पै गए, नहीं बच सकिया कोई भी। एक बड़ा शायर सुंदर फुरमान करदा है, कहंदा जिंदगी बैठी थी अपने हुस्न पे फूली हुई। जिंदगी बैठी थी अपने हुस्न पे फूली हुई, मौत ने आते ही सारा रंग फीका कर दिया। जिन्ना चाहे कोई तख्ता ताजा दा मालक सी, जिन्ना चाहे किसे ते हुसन सी, अजमतां सी, बरकतां सी, मौत दे आउंदियां ही रंग फिका पै जांदा है, फुल चढ़ जांदा है। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने प्रथमे ब्रह्मा कालै घर आया। काल ने पैदा किया है ब्रह्मा जी नूं। गुरु गोबिंद सिंह भी कहंदे ना चौपाई साहिब च, काल पाए ब्रह्मा बप तरा। काल दे हुक्म विच ही ब्रह्मा जी चलते ने, वड्डे नहीं उहदे नाल। और जिस दिन काल दा हुक्म होया, प्रथमे ब्रह्मा कालै घर आया। काल ने घर सद लिया, भाव शरीर धारिया सी, उन्हां दा भी समा आया, शरीर छड्डना पिया उन्हां नूं। कहंदे कोट महेश उपाए समाए, करोड़ां ही शिवजी वर्गे पैदा करदा है काल। अकाल पुरख दे हुक्म विच करोड़ां दी कहंदे लैता हो जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे, चाहे ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, चाहे शिव जी ने,
कोई भी किसी भी धर्म का रहबर है, महापुरुष है, काल विन दिंदा है, काल ले जांदा है। सो इस गल का ख्याल रखियो। बड़े भूपत राजे हैं छेदे, वड्डे वड्डे राजे छेद के रख दिते काल ने, नहीं छड्डदा वो किसी नूं। भाई नंद लाल ने कहा सी ना, गजल है उन्हां दी फारसी दी, फना पसीर बवद हरच हस्तदर आलम। इस आलम अंदर, इस दुनिया दे अंदर भाई नंद लाल कहंदे जो कुछ भी तुसी जगत विच वेखदे हो फना होने वाला है, नाश होवेगा, वो रह नहीं सकता। इनू कहंदे ने रहन ना पावै सुर नर देवा, ऊठ सिधारे कर मुन जन सेवा। कहंदे संत है साकत है नहीं रवेगा, तू भाई केड़े कर्मा धर्मा दाना दा हंकार चुकी फिरदा है, किन्ना तख्तां दा मान चुकी फिरदा है। इत्थे ते दुनिया नू रचण दा दावा करन वाले देवते काल ने नहीं छड्डे। इक्को ही तरीका है मौत तो निजात पाउण दा, जम्मण मरण नू कट्टण दा। वो कहंदे अकाल पुरख दे चरण फड़ लै। होर कोई कहंदे रस्ता नहीं है। आखण लगे जे नर सिरी पत के प्रस हैं पग, ते नर फेर न देह धरेंगे। इत्थे ना कई विश्राम गलत ला जाते ने, जदों नितनेम करते ने विश्राम ला देंदे ने जे नर सिरी पत के प्रस हैं, फिर पढ़ते ने पग ते नर देह न फेर धरेंगे। पर नहीं, विश्राम लगना है जे नर सिरी पत के प्रस हैं पग। प्रस का मतलब परसना, पग का मतलब चरण। जेड़ा नर अकाल पुरख दे प्रस हैं पग, चरण परसेगा ते नर फेर ना देह धरेंगे। फिर वो 84 लाख जून विच नहीं आवेगा। ही विल बी एमेंसिपेटेड, वो मुक्त हो जाएगा। सो इस गल का ख्याल रखियो। महाराज कहंदे ने दोज हू फॉल एट द फीट ऑफ द लॉर्ड, जेड़े खुदा दे चरनां विच डिग पए, उन्हां दा दुनिया ते जेड़ा आउणा है ना, वो नहीं होवेगा। वो मुक्ति हासिल करनगे, वो सचखंड विच उन्हां दा निवास होवेगा। दे वुड नॉट अपीयर अगेन इन दिस फिजिकल फॉर्म, वो जामे विच कदे भी नहीं फिर आउणगे। इत्थे नर लफ्ज़ है, नर मतलब इनू मर्द भी कह लो, इनू पुरुष भी कह लो, इनू मनुख जात भी कह लवो। कहंदे जेड़ा भी अकाल पुरख दे चरनां विच डिगेगा, उहदे लई लफ्ज़ वरतिया अकाल पुरख दे लई सिरी पत। सिरी शोभा वाला, शिरोमणी पत जो पति है, सबना दा मालक है, ऐसा महान है, उहदे लई आदर बोधक शब्द श्री लाया गया है। सब दा भरता है, सब दा ओ खसम है। बाणी चाहुंदा ना, सो ऐसा राजा त्रिभवन पति, तिन्ना लोकां दा जो पति है, मालक है, खसम है। इत्थे महाराज कहंदे ने प्रस है पग। संस्कृत का लफ्ज़ है स्पर्श, उहदे तो बनिया परस। चरण परसने, सेवा करनी, नाम जपना। पग जेड़ा लफ्ज़ है ये पद तो बनिया, पैर तो। ते नर फेर ना देह धरेंगे, जेड़ा भी अकाल पुरख दे चरण परसेगा मनुखे जामे विच ते की 84 लाख दे गेड़ विच नहीं आवेगा। सर्ब सुखा निद चरण हर भौजल बिखम तरे, ये संसार सागर तो ओ पार लंघ जावेगा। कहंदे आवा गौण निवारियो कर नदर निशान। अकाल पुरख की नदर पै गई तो आवागमन मिट गया। 84 का गेड़ उसका मिट जाता है, रीइनकारनेशन विच नहीं आउंदा। सो उन्होंने निजात मिलती है। इत्थे महाराज समझाउंदे ने एक अकाल पुरख नाल जुड़ो, उहदी कृत चाहे देवी देवते ने, सतपुरुष ने, साकत है, संत है, कोई रहन वाला नहीं। जो सदीवी है उहदे नाल सानू जुड़ना चाहिए है। बाकी सब चाहे देवते ने, महापुरुष ने, रहबर ने, उन्हां दा सत्कार करो, सिक्ख्या लवो, पर जुड़ो एक अकाल पुरख दे नाल।
अगले सोईए विच पातशाह पखंड का खंडन करते हैं, किसी धर्म का नहीं, पखंड का। कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद कह, बैठ रहियो बक ध्यान लगायो। कहते की होया तू अखा मीट के बह गया है बगले वांगू, की समझदा भी इन्ने नाल रब मिल जाएगा। जिन्ना चिर अंदर प्रेम नहीं है उन्ना चिर रब नहीं मिलता। भयो का मतलब है की होया। अगे वरत्या है लफ्ज लोचन, लोच कहते ने देखण नूं, लोचन देखदा कौन है? अखां। की होया? कहते अखां मीट लईयां तू। मूंद दा मतलब है मीटना, बंद करन दी क्रिया नूं मूंदन कहंदे ने। बैठ रहियो बक ध्यान लगायो, बक बगले नूं कहा, टेढ़ा ध्यान लाउण वाला, पखंड करन वाला। ध्यान की है? मन विच किसे नूं लैके आउण दी क्रिया, हर पक्ष तो ध्यान तोड़ के अकाल पुरख विच टकाउण दी क्रिया, एक जगह केंद्रित करना। कहंदे देख अखां बंद कर लईयां, ध्यान लाउण दा दिखावा कीता, एक लत्त ते बगला खलो जांदा है सरोवर विच, छपड़ी विच, कोई हिल जुल नहीं, शांत, रंग चिट्टा है, शांति का प्रतीक जापदा है और बड़ा टिकिया होया जापदा है। सच्चाई होर है, तुसी शांत काया वल वेखो, हिल जुल रहत काया वल वेखो, टिकी हुई काया वल वेखो, ते आखो भी ये रब दे ध्यान विच नहीं, कहंदे षड्यंत्र रचिया जा रहा है। जदों ऐन एकागर होके सरोवर विच खलो जांदा है तो ਜਿਹੜੀਆਂ मच्छियां सन ना वो इर्द गिर्द नज़दीक आ जांदियां ने, उन्हां दे भाअ दा कोई जड़ स्वरूप है, कोई पत्थर होवेगा जां कोई तीला कोई डंडा होवेगा, उन्हां नूं भुलेखा पै जांदा है। वो फिर जदों बगले दे नज़दीक आउंदियां है, पानी विच जदों हिलजुल हुंदी है ना, मछली नज़दीक आउंदी है, अनुभव हुंदा भी शिकार मार हेठ आ गया हुण। फिर अखां खुल जांदियां है, समाधि खुल जाती है, झपट मार के मच्छी नूं निगल लैंदा है, छक जांदा है। महाराज गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने, बगला काग नीच की संगत जाए करंग, बिखू मुख लाइए। बगला है जां काग है, लाखे साध होण दा जतन करन भी सुधर गए ने, मूँह इन्हां गंद च ही मारना हुंदा है, मास ही पखना है, लख चंगे होने का दिखावा करने, पर यह मूँह मास विच ही मारते। सो बगले का ध्यान शुद्ध नहीं सी, शिकार खेडण लई ध्यान लाया सी, पखंड कीता सी। हंस भी शांत रहिंदा है पर मोती चुकदा है, मच्छियां नहीं लभदा फिरदा, शिकार नहीं लभदा फिरदा। इदां ही संत ते साकत दी अवस्था है। संत समाधि लाउंदे ने मोती चुगण लई, भाव परमात्मा की याद विच बहिंदे ने, सत संतोख दया धर्म महान गुण पैदा करन दे लई। ते बगला समाधि लाउंदा है, पखंडी समाधि लाउंदा है शिकार फसाउण लई भी। लोग आखणगे बड़ा संत है, चिट्टा लिबास है, अखां मीटियां, चौंकड़ा लाया, शिकार फस गया, 4 पैसे रखे, ते बगले होना झपटे ते चलो ठेके ते, चलो ढाबे ते हुण मास मूस खाइए, शिकार ते फस गया। दिखावे दा संत, लोग फस जाते ने। गल सारी इत्थे चढ़ावे दी है, ध्यान चढ़ावे लई लाया सी, बैठा सी शिकार फसाउण दे लई, बाणा छिट्टा पाया, माला भी महापुरुषां वांगू हत्थ विच फड़ लई। कबीर जी कहंदे ने ना, गली जिन्हां जप मालियां लोटे हथ ने बग, ए हर के संत ना कीए बनारस के ठग। ठगी मारनू लिबास माड़ा नहीं है, चाहे माला है चाहे बाणा है, उहदे च बुराई नहीं है, इहदे अंदर बुराई है जिसने विखावे लई पहनिया है। कहंदे केवल दिखावे लई चिट्टा लिबास पाया, निशाना मच्छी सी, प्रभु की प्राप्ति नहीं। निशाना धन सी, प्रभु की प्राप्ति नहीं, ये केवल विखावे मात्र सी। कहंदे बाहर ज्ञान ध्यान इशनान, बाहर तन करके, बाहर ज्ञान ध्यान इशनान, अंतर व्यापै लोभ सुआन। अंदर लोभ है,
अंदर लोभ है भी लोक जाल विच फसन, मैनू महान संत समझन, चढ़ावा रखण। अखां बंद करनियां गुनाह नहीं है, बाणा पाउणा गुनाह नहीं सी, माला पाउणी गुनाह नहीं सी। जे निशाना प्रभु की प्राप्ति हुंदा, निशाना सी स्वै पूजा, निशाना सी धन की प्राप्ति, अपनी वडियाई, प्रभु की प्राप्ति नहीं सी। याद रखियो उज्जल मोती चुग है हंस, सर्व कला जगदीसै अंश। संत समाधि लाउंदे ने सत संतोख दया धर्म खिमा आदक चंगे गुण प्राप्त करने लई, मोती प्राप्त करने लई वो हंस ने। बगला समाधि लाउंदा है मच्छी नूं मार हेठ लियाउण लई, लोकां नूं ठगण दे लई। सो इत्थे फर्क बड़ा है। ते लोक हंस समझ के बगले दे जाल विच ना फस जाण। कलगीधर ने तां इत्थे सानू हुक्म कीता है भी ध्यान रखना है। ये रीस कर रहे ने, बाणी कहती है ना, रीसा कर है ते नाड़ियां जो सेवै दर खड़िया। जो रब दे दर ते पहुंचे ने रीस ओदी कर रहे ने, ये बखंडी जेड़े साध ने, असल महापुरुषां दी रीस कर रहे ने। नाल खसमै रत्तियां माणै सुख रलिया। रीस के दी जो खसम नाल मिली हुई सुहागवंती है, जो असल संत है, रीस ओदी कर रहे ने बाहरी तौर ते। महाराज कहते रीस करनी है ना, ऐ बगले तू हंस बनना है ना, ते अंदरों जैसे संत परमात्मा विच अभेद ने, तार ला के जुड़े हुए ने, इदां जुड़। बाहरों पहरावे दी रीस कीतियां गल नहीं बननी। अंदरों संत किदां जुड़िया, कहते जिवें बच्चा दुध नाल जुड़िया है। 5 4 6 महीने का बच्चा दुध तो बिना नहीं ना रह सकता। ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡੌਣੇ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਓ, ਭੋਜਨ ਉਹ ਛਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਿਡੌਣੇ ਲਿਆ ਦੋਗੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਉਹਦੀ ਤਪਸ਼, ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਵੈਰਾਗ ਉਦੋਂ ਮਿਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵੇਗੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੀਰ ਸੰਗ ਬਾਰਕ ਹੈ ਲੀਨਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਤ ਐਸੇ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਦੁੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ परमात्मा नाल, जिवें बच्चा दुध बिना नहीं रहिंदा, तू रब बिना ना रह। ऐसी तार ला, बगले वाली तार ना ला, समाधि ना ला। हुण अगे महाराज समझाउंदे ने, कहंदे काहे को कीजै ध्यान जपन्ना, जब ते शुद्ध नहीं मन अपना। जदों मन ही शुद्ध नहीं है तो काहदा ध्यान लाया ही। लोकां नूं ठग लवेगा, रब थोड़ा ठगिया जाना है। वो ते अंदरली तार वेंदा है। तो जदों बच्चा रोवे तो मां दुध दे दिंदी है। जे वाकया ही रब लई वैराग होवेगा तो प्रगट हो जाएगा, तैनूं दर्शन देवेगा, तेरा जीवन सफला होवेगा। अच्छा, जिन्हों बुखार होवे ना अंदर, उहदी काया कुमला जाती है, उन्होंने लोकां नूं जाके दसना नहीं पैंदा, भाई मैं ढिला हो गया, मेरा पता लो हस्पताले आके। निढाल हो जाता शरीर जिहड़ा अंदरों बीमार है। सोने नूं अंदरों भी फोल के वेखो, सोना ही निकलेगा। लोहे ते लख तुसी सोने दा रंग मार दिओ, अंदर की है? लोहा ही है। जेड़ा अंदरों संत नहीं, ओदा बाहर पहरावा पाया भी पहचान विच आ जांदा भी ठगी कर रहा है। ते जेड़ा अंदरों सोना है ना, वो बाहरों भी सोना है। जेड़ी जड़ अंदर है ना, बीज अंदर है, बाहरों भी प्रगट है। अंदर सिखी है, बाहर बाणा है, सिंह है। जे अंदर सिखी नहीं, बाहर बाणा है, समझ आ जाती है पखंडी है, बीज है नहीं अंदर। ये फुल खुशबोई नहीं दे सकता, कागज का फुल है, जड़ नहीं लगी अंदर। जेदी जड़ लगी है खुशबोई देवेगा। अंदर सिखी है, बाहर बाणा होवेगा, उहदे कोल ओदी भी समझ आ जाएगी भी फुल असली है, खुशबोई देने वाला है। सो कहंदे बगले तो बच, हंसां दा संग कर। अगे महाराज इन्हां बारे ही दसदे ने, नाहत फिरियो लिए सात समुंदरां, लोक गयो पर लोक गवायो सत समुंदर। इत्थे भाव है सत्तां सागरां दा इशनान कर लिया, बई सारे तीर्थ फिर तुर लए। वैसे 7 सागर मशहूर ही ने ना, आर्टिक ओशन, एटलांटिक, पैसीफिक ओशन, नॉर्थ पैसीफिक, ये जिन्ने भी 7 समुंदर ने। खैर कहते भाव दुनिया के हर तीर्थ ते तू चलिया जा, इशनान कर ला। हुण मन विच पखंड सी, लोक गयो ना ते घर रह के किरत कीती, कमाई कीती, कुछ खटिया ही, फिरदा रहा तीर्थां उत्ते, मन शुद्ध नहीं सी।
महाराज कहते ने लोक गयो परलोक गवायो। लोक जन समूह नूं, इस लोक नूं कहते ने। जेड़ा परलोक है, पर लोक जेड़ा परां है, जो नजर ही नहीं आउंदा, अखां दा विशा नहीं। नरक कह लो, स्वर्ग कह लो, सचखंड कह लो, ये वक्खो वक्ख उन्हां इलाकियां दीयां कलोनियां ने। जिवें इत्थे देश वंडे ने ना, उत्थे भी वंड होई है। नरक है, स्वर्ग है, सचखंड है। कहंदे परलोक इसलिए गया क्योंकि नाम नहीं जपिया। लोक इसलिए गया क्योंकि तीर्थां ते फिरदा रहा, कमाई नहीं कीती। यह लोक सुखीए परलोक सोहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। नाम जपण वालियां दा लोक भी सौरना सी ते परलोक भी। हुण तीर्थ ते गया, घर दा काम कर इसने छड्ड लिया। जिहड़ा धन हैगा सी वो तीर्थ ते पाउंदियां ही गवा लिया। भी पैंडा करना सी, खर्चा ते करना पैना सी। हुण तीर्थां ते जाके इशनान कीता, पर अकाल पुरख दा नाम नहीं जपिया। फोटोआं खिचवा लईआं, दूजियां नाल झगड़ा कर लिया, चंगे कपड़े वेखे ते चुक ले, चंगी जुत्ती वेखी ते आपदी टुटी जी उत्थे छड्ड आया ते जुत्ती चुक ली। कहंदे तीर्थां ते गया, खटिया कुछ भी नहीं, विकार उदां ही ने, ठगी ठोरी उही है, धोखाधड़ी उही है, रब दे गीत गाए ही नहीं। कहंदे तीरथ बरते अर दान कर, मन मह धरै गुमान। नानक निहचल जात तेह ज्यों कुंचर इशनान। हाथी ना नहाउंदा है नदी विच, बाहर आउंदियां ही सुंड दे नाल मिट्टी चुक के उत्ते धूड़ लैंदा। कहंदे नाता काम नहीं आया। तीर्थ ते गया, मन ते साफ होया नहीं, नाम नहीं जपिया, के फिर उही जीवन ठगियां ठोरियां। कहंदे लोक गया इहदा 68 तीरथ, हर नाम है किल विख काटन हारा। कहंदे अकाल पुरख दा नाम जपो, 68 तीर्थां दा फल भी मिलेगा ते पाप भी कटे जाणगे। नाम रते तीरथ से निर्मल, दुख हौमे मैल चुकाया। नाम विच रंगे हुए तीर्थां नूं भी निर्मल हो जांदे ने। महाराज कहंदे तू लोक परलोक गवा लिया, नाम जपिया नहीं, परलोक भी जांदा रहा। बास कियो बखियान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। बास, बास दा भाव है दीन दुनिया दे मालक। कहंदे किते बैठ जाना, उम्र बतीत कर लैनी, समा गुजार लेना। हुण इत्थे रहन दे स्थान नूं वास किया है। इन्हें वास किथे कीता? घर छड्ड के बिखियान च, जंगल दे विच, पहाड़ां दे विच, पत्थरां दे विच जाके बह गया, वन दे विच जाके बह गया। ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, इदां ही उम्र लंघा लई। कहंदे तू बैस बतीत कर नहीं आया, तू समा लंघाउण नहीं आया। समा ते पत्थरां दा भी लंघ रहा है, समा ते पशुआं दा भी लंघ रहा है, समा ते रुखां दा भी लंघ रहा है। तू समा सफल करन आया सी, पर तू कहंदे समा इदां ही लंघा लिया, बतीत कर लिया, अजाई गवा लिया। मन मारण कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत ना पाइए। तू मन मारण लई जंगलां विच गया, कहंदे पर मन ते मरिया ही ना। मन ते फिर शहरां वाल, पिंडां वाल ही दौड़िया भी राशन का प्रबंध करा, किसी गृहस्थी तो जाके मंगा, आपदा गृहस्थ तू छड्ड बैठा है। कहंदे काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। कहंदे परमात्मा जंगल च भी है ते घर भी है, ते तू घर छड्ड के जंगल लभण आया है। किन्ना पैंडा करके समा खराब कीता तू। जे घर ही बैठ जांदा, वो तो इदां वसदा है जिवें फुल्लां च खुशबोई है, शीशे च तेरी छाया है, वो तो तेरे विच इदां वसदा है। कहंदे उसनूं पाउण लई तू आखे मैं जंगली चला गया, समा खराब कर लिया। वो हर जरे विच मौजूद सी। जंगल जाके भी टिक जांदा ते गल चंगी सी, तू टिकिया नहीं। जंगल जाके फिर घर दा ख्याल भी रोटी चाहिदी है, ते रोटी ते गृहस्थियां घर ही पकनी सी। फिर तू पिंडां च मंगण तुर पिया। वो मंगना ते मुक्या ही नहीं, घर छड्ड के की पाया जी। घर वाली छड्डी सी, 4 चेले रख लए ने, की छड्ड के पाया जी? छड्डिया कुछ भी नहीं। कहंदे केवल घर ही छड्डिया है, इदां रब नहीं मिलेगा। पुछो किदां रब मिलदा है? कहंदे साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। कहंदे कन खोल के सुन लो, बंदा लख तीर्थां ते जावे, जे मन विच पखंड है, लख बगला बने,
संत दी रीस करे, हंस दी रीस करे, बगल समाधियां लावे, मन विच कपट है। तीर्थ नातियां मन विच कपट रखिया, जंगल विच भविया मन विच कपट रखिया, समाधि लाया, धार्मिक लिबास पाया, माला धारिया, नाल मन विच कपट रखिया। जे आखो भी ये भेख कीतियां रब मिल जाएगा तो नहीं, रब नूं मिलण दा इक्को ही तरीका है, जिन प्रेम कीओ ते नहीं प्रभ पायो। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे अंदर खाली प्रेम बिन टह ढेरी तन शार। जिहदे अंदर प्रेम नहीं है उहदा शरीर भी मिट्टी ते नाम ही मिट्टी। कहंदे प्रेम प्रायण प्रीतम राओ। परमात्मा केवल प्रेम दे प्रायण है, प्रेम दे वश है। प्रेम तो बिना परमात्मा नहीं मिलता। नाम बिना ना ही निज ठाओ, नाम तो बिना। अच्छा तुसी मेरे दरवाजे ते खलोते रहे सारी रात, आवाज मैनू दिती नहीं, मैं क्यों दरवाजा खोला? अकाल पुरख लई ये उदाहरण समझ लो। ओदे दर ते खलोते रहो, नाम जपो ही ना, गल नहीं बनेगी। कबीर जी कहंदे कबीर केसो केसो कूकी है ना सोई है, आसार रात दिवस के कूकने कबू के सुने पुकार। पुकार उन्हां दी सुनदा है जेड़े प्रेम विच ने, जेड़े नाम जपदे ने। प्रेम प्रीत भाए भगती पाईए, सतगुर बूझ बुझाई। सतगुरां समझा दिता प्रेम नाल ही रब मिलदा है, विखावे नाल नहीं, पखंड नाल नहीं। जिद्दां बगले ने मच्छी लई तार जोड़ी है, इदां अकाल पुरख नाल लिव जोड़ तार जोड़। जिवें बच्चे ने मां दे दुध लई तार जोड़ी है, इदां अकाल पुरख दे लई जोड़। ते गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहंदे ने तैनूं परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, जीवन सफला होवेगा। भुल चुक दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा,